Hi students, how are you? Hope you all are fine. I got a very good suggestion, constructive suggestion from one of my friends that if I can make the writing more legible, easily readable by the audience, it would be better. So today what I am going to do is I am going to try this whiteboard which will make the things much more clear for you. Okay, so the topic that we are going to take today is the criteria for selection of solvent in case of gas absorption. गैस एब्जॉर्प्शन जो यूनिट ऑपरेशन है उसके अंदर हम लोग जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं उसे सिलेक्ट करने के लिए जो क्राइटेरियाज हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं गैस एब्जॉर्प्शन की, सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड जो सॉल्वेंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं कौन से ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। We are going to select a solvent for the case of gas absorption. Gas absorption, जैसे हमने दूसरे वीडियो में देखा है already, it is a mixture of different gases and using a solvent you are trying to remove one or more than one component from that gas mixture. एक gases mixture के अंदर एक liquid solvent use करके आप उसके अंदर से एक या एक से ज़्यादा components remove करने की कोशिश कर रहे हैं। So जो solvent हम लोग select करेंगे, it cannot be any random liquid. जो solvent use करेंगे, it has some specific criteria to be fulfilled. So first and foremost, जब हम लोग गैस एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो कंपोनेंट हम लोग गैस से रिमूव करना चाहते हैं उसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज दैट द सॉल्युबिलिटी of the component that you want to remove in the solvent that you are going to use should be as high as possible. जो solvent है वो उस component को बहुत अच्छे से dissolve कर ले, ऐसा होना चाहिए। So obviously जब solubility बहुत ज़्यादा होगी तो your rate of gas absorption would be very high. The quantity of solvent that is required would be again very less. ये दो बहुत important characteristics हैं जब हम लोग बात करते हैं solvent की gas solubility। अब one very important criteria is solvent can absorb the component in two methods. It can either be with a chemical reaction or it can be without a chemical reaction. Chemical reaction से भी absorb कर सकता है, chemical reaction के बिना भी absorb कर सकता है। हमेशा आप लोग एक बात याद रखनी है that when we are talking of chemical reaction, जब भी chemical reaction होगा, in that case the absorption will be very high. Obviously हमेशा chemical reaction के अंदर absorption बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर drawback क्या रहता है? The solute will not be able to be produced back in its original state. आप जो absorbed solute है उसे original state में recover नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आप chemical reaction नहीं use कर रहे हैं, if you are absorbing that just by normal absorption, in that case गैस एब्जॉर्प्शन के आगे जाके स्ट्रिपर टावर लगा दीजिए, वहाँ पे you will be able to separate the solvent and the solute, so that if you want to reuse the solute, you can reuse the solute. If you want to reuse the solvent, you can reuse the solvent. Obviously, ऐसे operations के अंदर हमेशा solvent की reusability is very important as far as the cost or feasibility of the process is concerned. इसीलिए generally chemical reactions जिसमें होते हैं, those solvents would not be that preferred. To understand H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं किसी भी गैसीय स्ट्रीम से, यू कैन हैव टू सिंपल ऑप्शंस। एक इथेनॉलामाइन सॉल्यूशन ले लीजिए इन विच द नॉर्मल एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस, और आगे जाके स्ट्रिपर के अंदर एट अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर आप H2S गैस को और आपके सॉल्वेंट इथेनॉलामाइन को रीजनरेट कर सकते हैं। द सेकंड ऑप्शन इज यूजिंग कॉस्टिक सॉल्यूशन। कॉस्टिक सॉल्यूशन को यूज करेंगे आप लोग तो कॉस्टिक विल रिएक्ट विद केमिकली रिएक्ट with your H2S and the rate of absorption would be very high. बहुत ज़्यादा absorption का रेट मिलेगा आपको, लेकिन आप ना H2S को रिकवर कर पाएंगे ना आप अपने solvent को caustic को रिकवर कर पाएंगे। So this is the first and the most important criteria of gas solubility. Second one is about volatility. You all know what is the volatility. Spontaneously evaporate होके वेपर फॉर्म में चला जाए, that is what is known as volatility. अब obviously अगर आपका जो solvent है वो easily vaporize हो जाएगा, it will be carried away with the treated gas. जो गैस को आप ट्रीट कर रहे हैं उसके साथ चला जाएगा। इससे दो प्रॉब्लम्स होंगे बेसिकली। फर्स्ट, your gas will get contaminated with the solvent. आपकी गैस के अंदर solvent जो है चला जाएगा तो गैस के अंदर एक नई impurity आ जाएगी, और दूसरी बात ये कि आपका solvent जो है वो gradually loss होने लगेगा, because of which your solvent, your makeup solvent that you need to add will gradually increase, और आपका process जो है it will not become economically feasible.
सो हमेशा जब भी हम बात करते हैं वॉलेटिलिटी ऑफ योर सॉल्वेंट शुड बी रिलेटिवली लेस, या हम लोग कह सकते हैं उसका वेपर प्रेशर जो है रिलेटिवली कम होना चाहिए, वो इवोपरेट स्पॉन्टेनियसली नहीं होना चाहिए। ओके, द थर्ड क्राइटेरिया इज द कोरोसिवनेस। इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। अगर आपका सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा कोरोसिव है तो जो आप इक्विपमेंट्स यूज करेंगे फॉर दैट आइदर यू नीड टू यूज मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हाईली नॉन कोरोसिव है, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एल्स इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल इक्विपमेंट्स, इन दैट केस कोरोजन की वजह से इट्स रेट ऑफ रिन्यूअल जो आपको रेगुलर बेस पे एक फिक्स लाइफ स्पैन के बाद आपको जो इक्विपमेंट चेंज करना पड़ता है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। इन बोथ दीज केसेस इट्स नॉट फिजिबल। तो आप जो सॉल्वेंट यूज करते हैं इसका कोरोसिवनेस जितना हो सके उतना लेस होना चाहिए, वॉलेटिलिटी भी लेस, गैस सॉल्युबिलिटी मोर। द फोर्थ वन इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी सॉल्वेंट ले लीजिए, कोई भी प्रोसेस कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल कम इन सम ऑफ हियर। जो कॉस्ट है सॉल्वेंट का रिलेटिवली इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। Fifth one is viscosity. Viscosity of the solvent should also be low. Viscosity से सबसे important जो पैरामीटर रहता है वो होता है पंपिंग का। If your viscosity is very high, the pumping cost, the pressure drop will be relatively very high. तो आपका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। So it's very important कि आपकी viscosity कम हो। Apart from the pumping cost, अगर आपकी viscosity बहुत ज़्यादा है, it will create barriers in terms of mass transfer as well as heat transfer. जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, डिफ्यूजन वुड टेक प्लेस मच बेटर, मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होता है। सो व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट इज द विस्कोसिटी टू बी रिलेटिवली लेस। एंड द लास्ट वन इज द miscellaneous, which includes the solvent should be non toxic, non flammable, chemically stable and easily available. ये पैरामीटर्स ऑल्सो दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फ्लेमेबल, इट शुड बी केमिकली स्टेबल बिकॉज आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिक्रीज करेंगे, इफ द कंपोनेंट गेट्स डिग्रेडेड तो इट कैन कॉज other side reaction, as a result of which your solvent should be chemically stable और availability easily होनी चाहिए। Okay, so these are the most important parameters when you are selecting the solvent for gas absorption. अब ऑलमोस्ट आप कोई भी प्रोसेस के लिए सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लीजिए, whether you go for solvent extraction or whether you go for leaching, except the first one, the rest of the parameters will almost always remain the same. गैस solubility के अलावा बाकी के सारे जो पैरामीटर्स हैं they can be called to be general characteristics for any solvent. अब देख लीजिए ऑलमोस्ट किसी की भी वॉलेटिलिटी रिलेटिवली कम होनी चाहिए, कोरोसिवनेस उतना कम होना चाहिए, कॉस्ट शुड ऑलवेज बी लेस, विस्कोसिटी लेस होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, केमिकली स्टेबल और इजीली अवेलेबल। हर सॉल्वेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो आई होप द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गैस एब्जॉर्प्शन इज क्लियर टू यू, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज जनरली asked in university exams. If you have any queries in this, please put up in the comment box. Thank you.